اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسۃ المہدی کی تیسری کلاس آج ہم المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں شروع کر رہے ہیں۔ یہ کلاسز ہم نے بیسیکلی اس لیے شروع کی کہ ہمارے بہن بھائی انکلوڈنگ ہمارے بھی انیشل سٹیجز کے عربی اوریجن نہ رکھنے کے باعث اور کم علمی کے باعث، کم تجربہ کاری کے باعث ایسی غلطیاں دینی امور میں کر جاتے ہیں کہ بعض کی غلطیوں کا ازالہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ مدرسۃ المہدی کی کلاسز کو آرگنائزڈ شیپ میں شروع کیا ہے، اگرچہ یہ کلاسز ہم الحمدللہ رب العالمین تقریباً لیٹ 70s اور ارلی 80s سے چلا رہے ہیں، مگر یہ آج تیسری کلاس ہے اور آج ہم جو امور پڑھیں گے ان میں پہلے دو امور ہیں۔ اذان اور اقامت کی ہم کریکشن کریں گے، اصلاح کریں گے، پھر اس کے آگے تیسرا ایشو دیکھیں گے۔ اذان کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اعلان، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ پڑھے ذرا سورہ توبہ، یاد کریں نا، ابتدا میں پڑھیں۔ اچھا، تیسری آیت سورہ توبہ کی۔ اذان کا مطلب ہے اذن مؤذن، اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان۔ فاذن ابو طالب اذانا جامعا، ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے مولا علی شیر خدا علی علیہ السلام کے عقیقے کے لیے اذان جامع فرمائی۔ اذان کا مطلب اعلان، یہ جو ہم اذان کہتے ہیں، اذان کا مطلب ہوتا ہے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ علیکم السلام، بس ٹھیک ہے، ٹھیک پڑھا نا، ورسولو۔ اچھا، اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان آیتوں کو یاد کریں، طلبہ ہمارے یاد رکھیں ان آیتوں کو، یہ بہت ضروری۔ اذان خود اناؤنسمنٹ ہے، اعلان ہے نماز کا۔ روایات میں آیا ہے کہ مؤذن، یہ عنوان الکلام ایک کتاب ہے مرحوم علامہ تن کابنی کی۔ جب میں امریکہ آیا تھا تو یہ فارسی کی کتاب ان 4 کتابوں میں سے ایک تھی جو میرے ساتھ تھی۔ میں نے آپ کی دعاؤں سے 2 سال اس کتاب میں سے زبردست مولویت چلا لی۔ یہ ایسی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے۔ تو جیسے مفاتی آپ کے پاس ہو جائے، منتہی الاعمال آپ کے پاس ہو، نہج البلاغہ ہو، قرآن ہو جائے، اگر آپ ترجمہ صحیح نہیں ذہن میں رکھتے تو ترجمے والا قرآن جیسے ہو جائے مثلا، ان کتابوں سے آپ توضیح المسائل ہو جائے، آپ 1-2 سال اپنی مولویت کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب بڑی کمال کی کتاب ہے اور اکثر لوگوں کو یہ کتاب اویلیبل نہیں ہے، اس لیے بھی یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ تھی۔ تو اس میں یہ روایت میں نے دیکھی کہ ایک مؤذن جب ایک اذان کہتا ہے، صرف ایک اذان، اس ایک اذان کے عوض وہ 40,000 لوگوں کو قیامت میں بخشوا سکے گا۔ علیکم السلام۔ اس لیے یہ خیر کا رواج رہنا چاہیے
اذان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مؤذن لڑنا شروع کر دے. ہمارے پاس ایک یہ بڑی مصیبت ہے, ایک مؤذن بیچارہ تیار ہوگا, دوسرا اس کے اوپر آ کے شب خون مار دے گا, تیسرا آ جائے گا. نہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا نظام کے ساتھ چلنا چاہیے. جس ادارے میں آپ جائیں اس ادارے کے نظام کا خیال رکھیں. یہ بہت غلط بات ہے, یہ چھچھورا پن ہے کہ ایک بندہ اذان کے لیے کھڑا ہے بیچارہ, وہ اس نے کان پہ ہاتھ رکھے اور دوسرا پیچھے سے آ کے مائک پکڑ کے اللہ اکبر. یہ بہت بری بات ہے. یہ تہذیب اور تمدن اور تمیز کے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ثواب حاصل کرنا چاہیے. ثواب پر ڈاکہ نہیں مارنا چاہیے. کانوں پہ ہاتھ مرسوم ہے, ویسے تو میں نے کوئی روایتوں میں دیکھا تو نہیں ہے, میں نے تو روایتوں میں تو نہیں دیکھا ہے, مرسوم یہی ہے. ظاہر ہے حضور نے بھی ضرور اذان تو ضرور جب تعلیم فرمائی ہے تو حضور نے اذان دی ہے. سب سے پہلے تو تعلیم تو دی ہے نا, بلال کو بھی تعلیم دی ہے, سلمان کو بھی تعلیم دی ہے, بوزر کو بھی تعلیم دی. ایسے مولانا صاحب ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اذان دیں, مگر آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار وہ دیتے ہیں اذان تاکہ لوگوں کی ذرا اصلاح بھی ہو جائے. ہاں تو خیر, اذان خود سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, تاکید کی گئی ہے, سنت اس کی تاکید کی گئی ہے. تو حضور کریم ائمہ اطہار علیہم السلام یہ چاہتے ہیں, اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو پہلے اذان کہیں. بعض احکام عورتوں کے لیے مستثنا ہوتے ہیں, وہ آپ اس بات سے واقف ہیں, پہلے میں عرض بھی کر چکا ہوں. تو اذان جو ہم دیتے ہیں عموماً اس میں ہم غلطیاں کرتے ہیں. تو آئیے ہم پہلے ذرا اذان کی درستگی کر لیں. قرأت اذان کی درستگی, اذان کی درستگی نہیں, خدا نخواستہ وہ میرے ایک شاگرد تھے, آیت اللہ بھی بن گئے تھے بعد میں, تو بیچارے غریق رحمت کرے خدا فوت بھی ہو گئے. انہوں نے شرح العلماء کی شرح بھی لکھی تھی, بہت فاضل آدمی تھے. آغائے رفاقت الحسنین خانے وال کے تھے یہ. تو یہ انہوں نے بسم اللہ میرے پاس ہی کی تھی بحمد اللہ, اور پھر آیت اللہ بن گئے ماشاءاللہ, آیت اللہ ہو کے دنیا سے گئے. خانے وال کے یہ تھے. تو یہ ایک جگہ میں نے ان کو بھیجا اپنی جگہ, جیسے آغا مختار بھی ماشاءاللہ محرم جا رہے ہیں, محرم ان کا کنفرم ہو گیا ہے ورجینیا میں امام مہدی سینٹر میں. تو میں نے ان کو بھیجا کہ آپ نے میری جگہ رمضان پڑھانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آج میں حسین آباد والوں کے لیے اذان کو درست کر رہا ہوں. تو وہ بندہ ایک ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا کہ تو اتنا سا مختصر مولوی اذان کو ٹھیک کرے گا؟ نبی امام ٹھیک نہیں کر سکے, مطلب تھوڑا سا سمجھانے کی بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. اذان ہم ٹھیک نہیں کر رہے, اذان تو ٹھیک ہے. ہماری جو قرات میں غلطیاں ہوتی ہیں, ہم جو اذان کہتے ہیں, کیونکہ ہماری قوم کو اذان کہنے کا شوق بہت ہے, ٹھیک کرنے کا شوق نہیں ہے. نماز پڑھانے کا بڑا شوق ہے. یقین کریں اگر ہم تھوڑا سا کنٹرول نہ کریں, ہر دوسرا بندہ پیش نماز بننے کے لیے تیار ہے. جی ہاں, عجیب ہے یہ سرائکی میں ہم کہتے ہیں کہ بکے پڑھنا, بندے بکے پڑھتے ہیں مولوی کے کہ مولوی کو کچھ ہو تاکہ ہم آ کے نماز پڑھا لیں. قرآن پڑھانے کا شوق بہت ہے, پڑھنے کا نہیں ہے, پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. حدیث قصہ کا بڑا شوق ہے, ٹھیک نہیں پڑھیں گے, غلط پڑھیں گے. دعائے کمیل کا بڑا شوق ہے, ٹھیک نہیں پڑھیں گے. اچھا, اب آئیے ذرا آج ہم تیسری کلاس میں اذان کو, قرات اذان کو درست کر لیں. جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان غلطیوں سے مبرہ ہو جائیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اذان جو شروع ہوتی ہے وہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے. اس سے پہلے استعاذہ پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, بسملہ پڑھیں, تسمیہ پڑھیں, وہ سب مستحبات میں سے ہے, اجزائے اذان میں نہیں ہے. اجزائے اذان وہی ہیں جو اللہ اکبر سے شروع ہوں گے. 4 مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم ہمیشہ بتا چکے ہیں, آج ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ اگر لفظ اللہ, یہ لام جو مشدد ہے, اس سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو منہ بھر کے لفظ اللہ کو بیان کیا جائے گا. اگر زیر ہو تو منہ بھر کے نہیں بلکہ خفت کے ساتھ باللہ, دیکھیے باللہ,
अल्लाह, देखिए बिल्लाह ये खफीफ, अल्लाह, इंशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए लिल्लाह को लिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, और अल्लाह अकबर को अल्लाह अकबर नहीं पढ़ेंगे। आपने कई दफा देखा होगा यही जवान बच्चे इकामत कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और वो अगर आप उनसे पूछें तो वो अपने आप को अल्लामा समझते हैं। हाँ, जो अल्लाह अकबर, क्योंकि करेक्शन तो करनी नहीं ना, हमने सोचा ही नहीं कि हमसे गलती हो सकती है, नऊज़ु बिल्लाह। हम अपने तई अपने आप को महफूज अनिल खता समझते हैं। इसी वजह से, इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारी कौम गुमराह हो रही है। अजान भी गलत, इकामत भी गलत, नमाज भी गलत, कलमा भी गलत, शहादत का कलमा भी गलत, उसूल दीन भी सही नहीं मालूम, फ़ुरूए दीन भी सही नहीं मालूम, बस वैसे अदद के तौर पे रट लिए हैं, जैसे कि कुरान कोई रट ले मगर उसे पता ही ना हो। रुब्ब तालिल कुरान वल कुरान यलअनु, कितने कुरान के कारी ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। इसलिए ये जो मदरसा शुरू किया गया, अगरचे कोई पजीराई इसको खास नहीं हासिल, हमारे लोगों को ज़रूरत नहीं है, हम ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जितनी हिम्मत है हिम्मत करेंगे, पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत। आज तीसरी क्लास है, तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये 4 मरतबा कहना है। अल्लाह अकबर भी कह सकते हैं, वो भी जायज़ है, अगर आप वक्फ ना भी करें तो भी हो सकता है। इसी तरीके से शरअल उम्मा में लिखा है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वक्फ करना ज़रूरी होता है, ये उनमें नहीं है। और बाज़ के नज़दीक, बाज़ ने तो बल्कि लिखा भी है कि बेहतर है अलग अलग पढ़े, इनको भी मिला के ना पढ़े, अल्लाह अकबर ना कहें। बाज़ ने तो ये भी लिखा है, मगर हमारे नज़दीक कोई हर्ज नहीं है। क़द क़ामतिस सलाह, तो क़द क़ामतिस सलाह भी कह सकते हैं, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इकामत में हय्या अलस सलाह, ते हय्या अलस सलाह भी कह सकते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह भी कह सकते हैं। अल्लाह अकबर ये 4 मरतबा आप कहेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा। उमूमन हमारे यहाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ये गलत है। अलिफ और नून जब आते हैं, नून पढ़ने में हज़्फ हो जाती है, लिखने में आती है। अशहदु अल्ला गलत है, हम खुद ये गलतियां करते रहे, मौलवी बन चुके थे, मौलाना बन चुके थे और गलतियां कर रहे थे। इसलिए ज़रा ज़्यादा मैं मोहतात हूँ कि जब मौलाना बन के भी मैं गलतियां करता रहा, तो हमारे भाई तो बेचारे मौलाना नहीं हैं, बहनें तो मौलानियाँ नहीं हैं, तो इसलिए चाहिए ये कि कम से कम अजान ठीक हो जाए। आज के इस क्लास में कम से कम अजान व इकामत ठीक हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह भर के। अच्छा, इसी तरीके से वहदहु ला शरीक लह जो आप कहते हैं, वो आहिस्ता कहना है, उतना ऊंचा नहीं कहना। और दूसरे लोग भी कहेंगे, साथ में रिपीट करना, खुद अजान व इकामत के कलिमात का रिपीट करना भी ये सुन्नत है। हमारे नबी करीम और आइम्मा बाकायदा रिपीट फरमाते थे और साथ में ये जुमले कहते थे। बस कहा जाता है, उमूमन मारूफ है, अल्लाह अकबर कबीरन कबीरा, अल्लाह अकबर जल्ल जलालुहु, जल्ल इस्मुहु, जल्ल ज़ातुहु। मुख्तलिफ किस्म के जो अस्मा हैं, पता चले कि आप पढ़े लिखे हैं कम से कम, और थोड़ा बहुत सुन्नतों का भी आप ख्याल लिहाज रखते हैं। अक्सर तो मैंने देखा है हमारे भाई बहन गप्पे लगाते रहते हैं, वक्त उनको मिलता है माशाल्लाह, अजान में बड़ा अच्छा लगता है उनको गप्पे लगाना। उनको सारे काम अजान में याद आते हैं। जिस तरह एक साहब थे मदीना के, वो फरमाते थे मेरे जो उधार हैं सारे मुझे नमाज में याद आते हैं, नमाज में मेरी सारी तवज्जो उधार की तरफ होती। अल्लाह महफूज फरमाए, हमें तवज्जो इल्लल्लाह रखनी चाहिए, इसलिए हर अमल कुर्बतन इल्लल्लाह होता है। ये सुन्नत है कुर्बतन इल्लल्लाह, अजान सुन्नत है मगर कुर्बतन इल्लल्लाह, इकामत सुन्नत है मगर कुर्बतन इल्लल्लाह। इसी तरीके से आप 2 मरतबा ये कहेंगे, फिर 2 मरतबा कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
نہ تو محمد کہنا ہے، پچھلے پہلے درس میں بتایا تھا، نہ محمد کہنا ہے۔ الحمدو کیا مانا؟ الحمدو اگر لاہور والی ہے سے پڑھیں ہلاکت، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ ساری پریز ہے، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے۔ الحمدللہ نعوذ باللہ ہلاکت ہے، استغفر اللہ۔ محمد نہیں کہنا، محمد بھی نہیں کہنا۔ حمد کا معنی ہلاکت، حمد کا معنی تعریف، حمد کا معنی آگ کا بجھنا۔ دیکھیں آپ کتنے معنی بدل جاتے۔ شاباش۔ اچھا، اب یہ 2 مرتبہ آپ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد درود بھیجیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے تو حضور نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ ہاں، ہلاک ہو وہ جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ درود نہیں بھیجتے۔ کم از کم آج کے بعد آپ نماز میں اذان میں تھوڑا سا چپ ہو جائیں، ضرور گپیں لگانی ہے، ضرور فونوں پہ، بڑے بڑے معتبر بندے فونوں پہ لگے ہوئے، ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر فونوں پہ لگے، اور ان کو بتا رہے ہیں اذان مکڑ دیو گل کریں گے۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا الٹا فون رکھ دو۔ کوئی آپ نے کوئی ڈیٹ پہ جانا ہے، ہمارے یہاں تاریخوں پہ جاتے ہیں قتلوں کی دشمنیوں والے، آپ نے کوئی ڈیٹ پہ جانا ہے، تاریخ پہ جانا ہے، آپ نے کوئی مہربانی کر کے فون الٹا رکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اللہ کو دیں۔ میں نے کل بھی کہا باسٹن میں نے کہا میرے بھائی بہنوں، اللہ کو آپ ٹائم نہیں دے رہے، دین کو بالکل آپ ٹائم نہیں دے رہے۔ آج آپ دین کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد دین آپ کو اگنور کر دے گا۔ جی ہاں، یہ تو خوش قسمت ہیں بعض لوگ کہ جن کے گھر والے مجالس کر لیتے ہیں، جیسے یہ ہمارے ندیم حسین زیدی ابن سید نذیر حسین زیدی کی آج مجلس علیم زیدی کروا رہے ہیں۔ اللہ ان کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور اللہ ان کے والد کو بھی جنت میں جگہ دے۔ اور ملک محمد یوسف آوان ابن ملک علی محمد آوان کی مجلس بھی ہمارے مولانا علی رضا علوی صاحب نے اور ملک محمد نواز صاحب نے اور حسن رضا حسین رضا نے عطیہ اور فرحت نے کروائی۔ اللہ ان کو بھی اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ شب جمعہ میں آغا نے بھی ملک محمد یوسف کے لیے یہ شکریہ، جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آغا کے بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ تو حضرات و خواتین، 2 مرتبہ آپ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 2 مرتبہ ہی کہیں گے، مختصر کہیں تو کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ، مختصر اتنا بھی کافی ہے۔ مفصل کہیں گے، کہیں بلکہ مفصل، کون سی جلدی ہے؟ ہمیں لاہور والے کہتے ہیں کون سی کالی پڑی ہے، کون سی جلدی ہے؟ ٹھیک ہے، مولا کا نام ہے، ڈٹ کے لیں۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ کئی بندے یہ اگلے جملے بہت آہستہ کہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ آپ اونچا کہیں، کیوں آپ آہستہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اونچا کہیں، ہم نہیں وصی رسول اللہ اونچا کہیں، آہستہ نہیں کہنا، ڈٹ کے اونچا کہیں، بالکل وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ یہ ایک جگہ تھی سید کسرا ہے، سید کسرا، جہاں کاظمی سید ہے۔ میں جب بچہ تھا تو ہم جب پنڈی جاتے تھے آوان کی بس سے، تو وہاں وہ سید کسرا کے سامنے ایک ہوٹل تھا، ہاں وہیں مجاہد کاظمی صاحب، بالکل یہ کاظمی برادران بھی جو ٹرینٹن والے ہیں یہ بھی وہیں کے ہیں، اور یہ جو حامد موسوی صاحب کے بلایا علامہ صاحب یہ بھی دراصل وہیں کے، یہ بھی وہیں کے، جی جی۔ تو اب یہ آپ یقین کریں کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے، بچے تھے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ سید کسرا آ گیا؟ جب وہاں سے اذان آتی، دور سے اذان اڈے پہ ایسی سنائی دیتی تھی، رہے اللہ کا نام، اور وہ تو پھر باقاعدہ کہتے تھے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین،
वो ये भी कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, अलीयम वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह है व खलीफतुहु बिला फसल। और फिर दुरूद भेज देंगे आप, क्योंकि ये कुल्लुना मोहम्मद है। इसके बाद आप कहेंगे 2 मरतबा हय्या अलस सलाह, जल्दी आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, 2 मरतबा। फलाह की तरफ आओ, ये फलाह है, नमाज फलाह है, ये खुद फलाह है नमाज, दुनिया और आखिरत की फलाह है। जिनको नमाज में लज्जत आ जाती है, आप यकीन करें कि वो फिर नमाज के वक्त कोई और काम नहीं करते। और जिनको नमाज में लज्जत नहीं आती, वो जुमे के टाइम पे भी फजूलियात में लगे रहते हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो बड़े अमीर थे, मरहूम हो गए। मेयर था, मेयर हमारे उधर का जिधर हम रहते हैं, मेयर ने उनको एक बिल्डिंग फ्री दे दी, बिल्कुल फ्री। 5-7 लाख की बिल्डिंग थी, एक टेडी पैसा नहीं लिया, फ्री दे दी। मैंने उनसे पूछा कि ये मेयर से कोई दोस्ती है आपकी? कहते हाँ दोस्ती तो है, मगर ये मेयर बड़ा बखील आदमी है, इसलिए मैं शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ, ताकि वो उसको पता चले तो कहीं वो मेयर बड़ा बखील आदमी है। तो मैंने कहा कैसे मिल गई? कहते मैं जब से अमेरिका आया मैंने जुमा नहीं छोड़ा, ये जुमे के एवज अल्लाह ने मुझे 7 लाख की बिल्डिंग फ्री दी थी। बंदे का अकीदा होना चाहिए। हमारे लोग $20 की सवारी मिल जाए, ये जुमा छोड़ देंगे। 100 कर लीजिए, चलिए 200 कर ले। आप 2 घंटे में 200 से ज्यादा तो नहीं कमा सकते ना, कमा सकते हैं 200, चलिए 200 कर ले। 200 के वर्थ इनको जुमा नहीं है, इनका 200 न जाए, जुमा चला जाए। हमारे भाइयों का खास तौर पे अल्लाह इनको हिदायत करे, यही कह सकते हैं। हम इनकी बात तो माने तो सेंटर बंद कर दें, जुमा भी बंद कर दें। ये तो ये चाहते हैं कि ऐलान आ जाए अलमैदी सेंटर में जुमा नहीं होगा, नऊजुबिल्लाह, अलमैदी सेंटर में शब जुमा नहीं होगी, अलमैदी सेंटर बंद हो गया है, ये इससे खुश होते हैं। फिर ये मुखालफत भी नहीं करेंगे, ये मुखालफत उसी दिन तक है जब तक दरवाज़ा खुला हुआ है, हिदायत हो रही है, कन्वर्ट हो रहे हैं। आप बताएं, आप जुमा के दिन नहीं देखा आपने यहाँ पर 2 बंदे कन्वर्ट हुए? हम हर हफ्ते कन्वर्ट कर रहे हैं, 2-4 हर हफ्ते। इन्होंने जिंदगी में एक बंदा कन्वर्ट नहीं किया, पूरी जिंदगी में, बल्कि सब ने मिलकर एक बंदा नहीं किया। हम अकेले 2-4 हर हफ्ते शिया किए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अहले सुन्नत के भी कदरदान हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हम कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं शिया करते, ना हमारा ये नारा है कोई। हमारे सुन्नी भाई ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अलमैदी सेंटर से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मेरे भाई भी हैं, मेजर ज़मरुद खान साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे, मलिक साहब, ये तशरीफ़ फरमा है। यकीन करें कि ये इतने मुखलिस हैं कि वो बेकरी पे मिल गए बाई चांस मुझे, तो मैंने कहा आप नज़र नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं हाज़िरी दूंगा। देखिए माशाल्लाह वो आए हुए, अल्लाह ताला इनको सेहत कुल्ली भी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, अजीज़ों, 2 मरतबा आपने कहना है हय्या अलल फलाह, 2 मरतबा हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल 2 मरतबा, फिर अल्लाहु अकबर 2 मरतबा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा। अगर आप कप्तान की बात मानेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह ताला उसको हिदायत करे। आज भी बेचारा वो पढ़ेगा ऐसे, उसने कसम खाई, जैसे हमारी कौम ने कसम खाई है ना, उसने भी कसम खाई हुई है कि गलत ही पढ़ना है। या हमारे यहाँ औरतें जब बर्तन धोती थीं हमारे गांव संदराल में, मुझे आज भी याद है, तो वो कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह, इससे उनके वो हो जाते थे पाक। जी हाँ, ये उनका कलमा था। या फिर मैंने सुना कि अली उसदा वलीउल्लाह, देखिए ये भी साथ, यानी वो अपने पंजाबी में समझ रहे हैं कि कलमा पंजाबी में पढ़ा जाएगा। हमारा जो खान है वो मियाँ वाली में कलमा पढ़ रहा, वो नमाज भी मियाँ वाली की ज़बान में पढ़ता। अच्छा, जो मौलवी भी हैं उनके यहाँ जो लंबा लंबा माल भी लेते हैं उस बेचारे के पास से, तो उनको बता दें, कम से कम बता दें कि भाई आप ठीक कर लो कलमा अपना। बुरी बात है, ये तमस्खुर उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है।
अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह इस वक्त हमारे जो आइए अलैकुम अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं इस वक्त के, वो भी कलमा गलत पढ़ते हैं, और जो हमारे साबका वज़ीर आज़म है वो भी कलमा गलत पढ़ते हैं। बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होना ही उसको चाहिए कि जो कलमा गलत पढ़े। ये एक शर्त उसकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ये है कि जो कलमा गलत पढ़े। तकरीबन मैंने जितने वज़ीर आज़मों को देखा है वो कलमा गलत ही पढ़ते हैं। अल्लाह इनको हिदायत करे। कम से कम एक मिनिस्ट्री ऐसी बना दें एक दफ़ा। बस मैं बात कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए मुझे। एक दफ़ा मेरा एक जानने वाला पाकिस्तान का CEO बन गया इत्तेफाक से, CEO। उसने सनराल गाड़ी भेजी, बहुत बड़ी गाड़ी, वो VIP गाड़ी। उस सनराल में जब गाड़ी आई तो लोग गाड़ी देख के ही डर गए। गांव के लोग हैं बेचारे, वो एक सिपाही से डर जाते थे, आपको तो पता है। तो उन्होंने कहा पता नहीं, उन्होंने कहा जी हमने हाजी साहब को मिलना है, उनको ले जाना है इस्लामाबाद। खैर ले गए, वो इस्लामाबाद ले गए। मेरे साथ एक मेरा कज़न है गुलाम अब्बास, फूफी का लड़का, अल्लाह उसको सेहत दे। उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है परसों। तो ये हाजी रियाज का भाई बड़ा, तो वो भी मेरे साथ चला गया। उसके वालिद ने कहा कि भाई तू हाजी के साथ चला जा, ये हमारी सड़क बनवा दे। हाजी जो है ना, पता चला है कि CEO इसका वाकिफ़ है, तो हमारी सदराल की सड़क, खैर उनकी सड़क तो बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, सड़क उनकी बन गई। गुलाम अब्बास ने वहाँ मुझे बात याद करा दी। तो मुझसे CEO तो खैर उस वक्त नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। एक उनके जो असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट, वो अवेलेबल थे। तो उन्होंने मुझे कहा, बल्कि वो सैयद ही थे, आपके इलाके के थे, वो मुझसे कहने लगे कि कोई हुक्म हो प्रेसिडेंट साहब के लिए। तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब से कहें कि एक मिनिस्ट्री कायम कर दें जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सदर, CEO, जर्नैलों, चीफ जस्टिसों, वज़राए आला, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स और जो आला ऑफिसर हैं उनको कलमा सिखा दे, नमाज सिखा दे, कुरान पढ़ा दे। एक मिनिस्ट्री कायम कर दे। खैर अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। ये हो गई अजान। अब एक बंदा 40 साल से अजान दे रहा है, मसलन आप ईमान से बताइए, 50 साल से अजान दे रहा है और आज तक उसने अजान ठीक नहीं कराई। इस रोशनी के दौर में, और वो तबसरे अपने आईफोन पे ऐसे सुनता है जैसे उसने वजारत उज़्मा का इलेक्शन कल लड़ना। तो अल्लाह के बंदो, ये तबसरे छोड़ दो, ये अजान सुन लो। अच्छा अब आ जाइए इकामत। इकामत के बारे में याद रख लें, इकामत कहते हैं उठाने वाली। अब देखते नहीं, कद कामत सला, तो कद कामत सला आप उठ पड़ते हैं। ये जो अलैकुम सलाम मेहरबानी, ये जो इकामत है, इसको इकामत कहते ही इसलिए है कि ये उठा देती है, बैठने नहीं देती। अच्छा क़यामत को भी क़यामत इसीलिए कहते हैं, क़याम से क़यामत है, क्योंकि क़यामत में कोई बैठ नहीं सकेगा। जी बिस्मिल्लाह। नहीं, कद कामत सला जब कहेंगे ना, उस वक्त आपने खड़े हो। जैसे इमाम ज़माना का नाम जब आता है खुतबे में, आप उस वक्त खड़े हो। पहले बेशक बैठे रहे ताकि फ़र्क वाज़े हो ना ज़माने के इमाम का। उस वक्त आप खड़े हो। कद कामत सला जब कहेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे। अब आइए ज़रा मसले आ जाए। आज हम अज़ान व इकामत क्लास नंबर 3 में, तीसरी क्लास में मदरसतुल महदी की क़राअत ठीक कर रहे हैं अपनी। अब हमने इकामत कहनी है तो बिस्मिल्लाह तो आप ज़रूर कहेंगे। कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर। बिस्मिल्लाह तो आप ज़रूर कहेंगे। अल्लाहु अकबर 2 मरतबा इकामत में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 मरतबा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 मरतबा। अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह 2 मरतबा। या दूसरी मरतबा अशहदु अन्ना अलीयन हुज्जतुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह।
अल्लाह अकबर 2 मरतबा, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह 1 मरतबा। ये हो गई इकामत। अब जो गलतियां होती हैं इकामत में भी वो सुन लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गलती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुहम्मद नहीं है, बता चुका हूं। ये मुहम्मद भी नहीं है, मोहम्मद। मोहम्मद देखे, मोहम्मद, ये जो एडम पैलेट है ना आपका, ये ऊपर चल जाता है। देखिए मोहम्मद, ये पढ़ा चुका हूं पहले भी। हा और हा में फर्क। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीय्यम वलीयुल्लाह। यहां अलीय्यम होगा, कलमे में क्या था? अलीयुम। हाँ, ये अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे कि किबला साहब, आज मैं 85 साल का हो गया हूँ, आज मुझे पता चला है कि हम ये सब गलत पढ़ रहे थे। आज पता चला है कि अजान में अशहदु अन्ना अलीयुम वलीयुल्लाह कहना है। मैंने कहा शाबाश। 85 साल के बाद उनको अब समझ आई कि अलीयम गलत था। भैया अन्ना की वजह से अलीयम होता है, अन्ना की वजह से। आप जब अरबी नहीं जानते तो इसमें तब आजमाई ना करें ना। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं पीएचडी हूं, मगर मैं फिजिशियन नहीं हूं। मैं कल से आपके लिए नुस्खे लिखना शुरू कर दूं तो क्या ठीक होगा? परसों मुझे अरेस्ट कर लेंगे कि इसने क्या धंधा शुरू कर दिया। जिसका काम उसी को साजे। मौलवियों का काम मौलवियों को करने दे, बेचारों को। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीय्यम वलीयुल्लाह 2 मरतबा। अच्छा, इसी तरीके से इकामत में मसलन आप कहते हैं हय्या अला सलाह, ये सलात नहीं है, सलाह। सा देखिए, सीटी बजनी चाहिए, विसल बजनी चाहिए। हय्या अला सलाह, देखिए हय्या अला सलाह। अमूमन लोग स्वाला, स्वाला नहीं है, ये स्वाद नहीं है, साद भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है, स्वाद भी नहीं, साद है। देखें साद, देखें साद। ये प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी, वरना हम भी ऐसे इलाके के हैं, हम चाकू को काचू कहते हैं। हमारे गांव में जो आज भी चाकू कहे, हम उसको जाहिल कहते हैं कि अनपढ़ आ गया, इसको चाकू का नाम नहीं आता। चाकू तो काचू होता है। जो काचू वाले हैं वो ठीक हो गए, देख लें आप। उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया क्योंकि उन्होंने मेहनत कर ली। असल तो मेहनत करनी है। ये आपके दोस्त हैं अल्लामा ताहिरुल कादरी, वो भी मेरी तरह ही गाँव के ही हैं, वो भी बेचारे, वो भी काचू वाले हैं। या मैं और वो दोनों काचू वाले हैं। मगर आप देखिए वो कहाँ पहुंच गए, कौम ने उनको कहाँ पहुंचा दिया। देखे ना, $1,00,000 उनको मास्टर जी गवाह है। ये वैसे शेर पंजाब को बात बतानी चाहिए। $1,00,000 ब्रुकलिन से लेकर गए थे ताहिरुल कादरी जब आए थे यहाँ पर। एक दिन का $1,00,000, $1,00,000 ये गवाह बैठा है मंजूर। $1,00,000 एक तकरीर के एवज उनको दिया था ब्रुकलिन वालों ने। 100 बंदे ने $1,000 दिया था कि पहली मरतबा हमारा आलिम आया है, कम से कम $1,00,000 एक तकरीर का लेकर जाए। अलैकुम सलाम, अलैकुम सलाम। बस दर्स नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 मदरसतुल महदी की इख्तिताम पजीर हो रही है। आज 2 इशू ही हम रेज कर सके, अजान और इकामत। इकामत में कद कामत सलाह को उमूमन कद कामत सलाह कहते हैं, काफ कश वाली। ये काफ कैंची वाली है, कुरान वाली कहें, बल्कि कैंची वाली नहीं, कुरान वाली कहें, काफ कुरान वाली। कद कामत सलाह, कद कामत सलाह। अच्छा, हय्या अला सलाह है, हय्या अला फलाह। देखिए हा जाहिर होनी चाहिए, हय्या अला फलाह। ये फलाह पता चले ना, ये नहीं कि आप अपने गांव की जबान में नमाज पढ़ रहे हैं या इकामत कह रहे हैं या अजान दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी, अगले संडे को छुट्टी है, आपको एक ब्रेक दे देंगे। हम भी ज़रा जा रहे हैं बाहर। अगर हज पे न गए तो क्लास जारी रहेगी, और अगर 27 को हज पे चले गए तो फिर इंशाअल्लाह हज के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिरी देंगे। तो आखिरी बात हो गई, ताकि वक्त पे शुरू कर दें। आज इंशाअल्लाह सूरह यासीन होगी फ़ौरन, और उसके बाद 3 से 4 लोग पढ़ेंगे, फिर मैं बैठ जाऊँगा। आज मुख्तसर इंशाअल्लाह, क्योंकि आज मजलिस है,
हमारे अलीम जैदी के वालिद साहब के अल्लाह ताला उनके वालिद के दर्जात को मुताली फरमाए और मलिक मोहम्मद यूसुफ के दर्जात को भी अल्लाह मुताली फरमाए। तो हज़रात ख़वातीन, क्लास नंबर 3 ख़त्म हो गई। आज ज़रा मुख्तसर हुई क्लास, सफ़र भी बड़ा तूलानी था और ज़रा देर से टेक्नीशियन भी देर से आए। अल्लाह ताला इनको भी जज़ा दे, कमर को अल्लाह कमर जैदी को जज़ा दे, हुसैन रज़ा को, अली रज़ा को, कि जिन्होंने इन कम्युनिकेशंस को पूरी दुनिया में भेज दिया है। और इंशाल्लाह ऑनलाइन भी ये मौजूद रहेंगी। ये क्लासेस बड़ी बेनिफिशियल होंगी। इंशाल्लाह आप आगे दोस्तों को भी भेज सकते हैं। आखिरी बात करें और इजाज़त लें आपसे, और वो ये है कि हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल। देखिए, अला में अला और अला ये फ़र्क होता है। अला अलिफ के साथ अला, ये अलिफ के साथ अला कहते हैं वार्न हो जाओ। अगर आप कहेंगे हय्या अला खैरुल अमल, जल्दी आओ, वार्न हो जाओ खैरुल अमल से, ये दूर चले जाओ खैरुल अमल से। देखिए कैसे मानी बदल जाते। ऐन से अला है, अला, हय्या अला ऐन से नहीं। साइलेंट कैसे होगा, जबर है, साइलेंट कैसे हो। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या हय्या अला, ये अला बेमाना इला है बेसिकली, आओ तरफ। अला बेमाना इला है, इला। हाँ, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरुल अमल, ये 3 डबल हो जाएंगे 2-2 बार। और कद कामत सलाह, कद कामत सलाह 2 मरतबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह नहीं। बस आज की हद तक इतना ही कबूल फरमा लें। अल्लाह ताला हम सबको सही अजान कहने और सही इकामत कहने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। इकामत इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप भूल जाएं तो हुक्म है नमाज तोड़ दें, नमाज तोड़ के इकामत कहें। अंदाजा लगाएं जरा, ये आज याद रखना मेरी बात। इकामत इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप भूल गए, नमाज वैसे तोड़ना हराम है, इकामत के लिए रिपीट करने के लिए नमाज तोड़ना जायज है, ताकि आप इकामत के सवाब से महरूम ना हो। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।